Morning, students. Today, first of all, we will follow a procedure, a trend. After explaining some things, today, after explaining few things, I will ask you whether you have understood or not. So you have to distinguish yourself whether you have understood or not. In case you have understood, you will raise your right hand. In case there is some doubt, you will raise your left hand. Okay? Nobody will be sitting without raising the hand when I ask, have you understood? Left means not understood. Right means understood. If such a feedback visually will come to me, naturally that will guide me to make the things further simpler. Okay? So without any delay, let's start the motion from the very basics. Shabash, everybody please write down the heading motion. Write down the heading motion, please. Be obedient. Some of the students have not written. Dear students, first of all, we will see whether a body or a person is at rest or is in motion. Is at rest or is in motion. We will study that. Okay? So let's see. Let's see. Number one, learning point one. Suppose bete, on this particular block, some child is standing. A child is standing on the concrete block. Very right? Now this child is moving, is being observed by a onlooker person. A child is being observed. This is the child and this is the morning walker, and while he moves, he observes the child standing on the block. So for this person, this child is not at rest, although in the simple English we will say in that the boy is standing on the block, that he is at rest. But according to physics, this child is not at rest if the observer is morning walker. Let's take another observer. This person is standing and observing the child. So you can say there is some lady, female, and she is standing at a particular spot, standing, not walking. For this person, child is at rest, and for the morning walker, child is not at rest. Now question arises, how the same person can be at rest for female observer, can be not at rest for the male observer? The answer according to physics is, a body is said to be at rest if by the passage of time, the gap between observer and the gap between the object being observed, the gap between the observer look at, this is the child, the gap between the observer and the female observer and the object which is being observed, child, if this gap remains constant by the passage of time, this gap
which the teacher has mentioned with the white line. If that gap remains constant, then for the observer, this child will be called at rest. Secondly, if you apply the same formula here, look at this morning walker. If you concentrate and see the length of the green line, what is length of the green line? That is the gap between the morning walker and the child. That gap will change by the passage of time. Because morning walker will keep on moving and this green gap will keep on changing. For this morning walker, the child is not at rest, rather it is in motion. अब यहां पर मेरे को कोई बच्चा बोल सकता है, सर वैसे रियलिटी में तो बच्चा रेस्ट पर है ना और बंदा मोशन कर रहा है ना, वैसे तो ऐसे है ना। यस बेटे, इंग्लिश के मुताबिक, आम जिंदगी के मुताबिक हम ऐसा ही पढ़ेंगे, लेकिन जब हमने फिजिक्स के मुताबिक रेस्ट या मोशन को डिफाइन करना है तो ऐसा ही बताना है। अगर जिस चीज को देखा जा रहा है और जो देख रहा है, अगर उन दोनों के बीच का दूरी समय के बीतने के साथ कांस्टेंट रहे, तब ये ऑब्जर्वर कहेगा मेरे लिए ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। और दूसरा ऑब्जर्वर उसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, लेकिन उसके लिए ये ग्रीन रंग की दूरी आपस में वक्त के साथ चेंज होएगी। जैसे ही ये मॉर्निंग वॉकर आगे आएगा ये दूरी कम हो जाएगी, और आगे जाएगा तो ये दूरी फिर से बढ़ जाएगी। तो वक्त के साथ ये ग्रीन वाली दूरी चेंज हो रही है मॉर्निंग वॉकर और चाइल्ड के बीच में। तो मॉर्निंग वॉकर के लिए ये चाइल्ड मोशन में है, ना कि रेस्ट पे है। तो इसका मतलब बच्चा कहेगा सर इसका मतलब जो रेस्ट है ना वो तो एक रिलेटिव टर्म होगी, ये उसका ऑब्जर्वर कौन है? बिल्कुल सही, रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन both are relative terms। relative, सर relative का एक बार फिर से मीनिंग बताओगे? यस बताएंगे। relatives का मतलब है जो चीज हम बताना चाहते हैं कि वो रेस्ट पे है कि मोशन पे है, वो ना केवल उस चीज पे डिपेंडेंट है बल्कि इस चीज पे भी डिपेंडेंट है, उसका ऑब्जर्वर कौन है। एक इसकी और एग्जांपल लेते हैं, शाबाश, एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। बेटे मैं आपसे पूछूं कि मान लो ये ताजमहल है, ताजमहल या कुतुब मीनार या कोई भी पर्टिकुलर टेम्पल, मैं आपसे पूछूं कि बेटे क्या ये रेस्ट पर है, तो जानते हो आप लोग क्या बोलोगे? हाँ जी सर ये तो एक हमारा वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट है और आगरा शहर में है और सदियों से वहीं पर खड़ा हुआ है, आप लोग इसको रेस्ट पर बोलोगे। ओके, तो यानी आपने यहाँ पर खड़े होकर देखा आगरा में, तो ताजमहल और आपके बीच में दूरी चेंज नहीं हो रही, तो आप कह रहे हो सर ये तो रेस्ट पर है। ओके, अब मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना, ये ताजमहल ये किसके ऊपर खड़ा हुआ है? आप बोलोगे सर आगरा शहर में एक पर्टिकुलर प्लेस पे खड़ा है। ओके, आगरा शहर खुद कहां पर है? सर भारत में। भारत खुद कहां है? सर एशिया में। एशिया कहां है? सर ये वन ऑफ द कॉन्टिनेंट है, ग्लोब के ऊपर है। ग्लोब यानी कि अर्थ। मैं आपसे पूछूं क्या ये अर्थ रेस्ट पर है? नहीं सर ये तो सन के इर्द गिर्द हमारी अर्थ ऐसे घूमती है। तो अगर अर्थ घूमती है तो आपने इसको, इसी ताजमहल को अर्थ से बाहर जाकर देखा। यू आर नॉट द ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ वाइल यू आर द ऑब्जर्वर आउटसाइड द अर्थ। फिर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये ताजमहल रेस्ट पर है? आप कहोगे सर पहले तो ताजमहल जिस ग्लोब के ऊपर है वो भी सन के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो मेरी और ताजमहल की दूरी तो चेंज हो रही है।
तो मैं अगर ऐसा ऑब्जर्वर हूं जो आउटसाइड द अर्थ हूं, तब तो मैं ये कहूंगा कि ताजमहल मोशन में है। तो इस मोशन, ये बंदा वर्क बोलेगा ताजमहल इज इन मोशन, जबकि ये बंदा बोलेगा सर जो आगरा के अंदर खड़ा हुआ है कि सर मेरे हिसाब से तो ताजमहल और मेरे बीच गैप चेंज ही नहीं हो रहा, सो फॉर मी ताजमहल इज एट रेस्ट। अनदर ऑब्जर्वर विल से फॉर मी ताजमहल इज इन मोशन। यहां से फिर समझ आई वही बात कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, यानी ऑब्जर्वर कौन है उसका। तो बच्चा बोलेगा सर फिर मैं इसकी डेफिनेशन पेपर में कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखोगे, फॉर ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वर द बॉडी इज एट रेस्ट if the body and the observer remains at the same distance by the passage of time। अगर ऑब्जर्वर और रेस्ट में व्हाइट लाइन वाला गैप समय के बीतने के साथ कांस्टेंट रहे, ना बढ़े ना घटे, तब वो रेस्ट पे बोलेगा। इफ फॉर द ऑब्जर्वर द गैप बिटवीन ताजमहल and the observer changes by the passage of time, this observer will say Taj Mahal is in motion। एक एग्जांपल और लेते हैं, शाबाश बेटे। एक बच्चा यहाँ पर है, वो अपने बाइक पे जा रहा है, गॉट इट। तो उसका दोस्त भी उसके साथ साथ पैरेलल में बाइक पे जा रहे हैं। ये दोनों यंग बॉयज हैं, चलो, और ये दोनों बॉयज अपना पैरेलल बाइक पे जा रहे हैं। एक जा रहा है हीरो होंडा पे और एक जा रहा है बुलेट पे। दोनों दोस्त अपना पैरेलल बाइक चला रहे हैं, ठीक है। और ये आपस में भी एक दूसरे को देख रहे हैं, और इन दोनों को इनका ये थर्ड फ्रेंड बाय बाय कह रहा है, जो जिसको ये मिलके जा रहे हैं। अब ध्यान से सुना, ये जो थर्ड फ्रेंड है उसको बोले कि भाई बता तुम्हारे लिए हीरो होंडे वाला बाइक वाला मोशन में है कि नहीं मोशन में। तो वो बोलेगा, ध्यान से सुनना, वो बोलेगा हीरो होंडे वाले मेरे दोस्त का मेरे और उसके बीच का जो ये गैप है येलो कलर से, ये टाइम के बीतने से चेंज हो रहा है, टाइम के बीतने से चेंज हो रहा है। तो दिस थर्ड फ्रेंड विल से माय फ्रेंड ऑन द हीरो होंडा इज इन मोशन। ओके, फिर इसी थर्ड फ्रेंड से बोलेंगे कि जो तुम्हारा बुलेट वाला दोस्त है वो बताओ मोशन में है कि नहीं। वो कहता मेरे और बुलेट वाले मेरे दोस्त में जो गैप है वो ब्राउन कलर से दिखाया है, और वक्त के बीतने के साथ साथ ब्राउन कलर भी चेंज होगा। तो फॉर दिस थर्ड फ्रेंड द फ्रेंड ऑन द बुलेट बाइक इज आल्सो इन मोशन। फिर हमने बोला कि भाई अच्छा ये बताओ, अगर ऑब्जर्वर बुलेट वाला लड़का है और वो हीरो होंडे वाले को देख रहा है, दोनों के दोनों बराबर स्पीड से पैरेलल चल रहे हैं, तो बुलेट वाले से पूछा कि तुम्हारे लिए तुम बताओ, बुलेट वाले से पूछा कि तुम्हारे लिए बताओ कि हीरो होंडा वाला मोशन लड़का मोशन में है कि नहीं। तो वो देखो ध्यान से क्या कहता है, वो कहता जो मेरा हीरो होंडे पे दोस्त है और जो मैं खुद बुलेट पे जा रहा हूँ, हम दोनों के फेसेस, हम दोनों की आईज, हम दोनों की पोजीशन समय के बीतने के साथ आपस में सेम गैप पर रहते हैं, क्योंकि हम पैरेलल चला रहे हैं बाइक को, ना कोई तेज कर रहा है ना कोई स्लो कर रहा है। हम दोनों के बीच का जो ग्रीन कलर का गैप है वो समय के बीतने के साथ चेंज नहीं हो रहा। इसलिए फॉर दिस बुलेट बाइक द हीरो होंडा बाइक इज एट रेस्ट। अगर ऑब्जर्वर ये है बुलेट वाला, तो हीरो होंडा वाला रेस्ट पर है। और अगर उल्टा करें, हीरो होंडे वाले लड़के से पूछें कि तुम्हारे लिए बुलेट वाला लड़का मोशन में है कि रेस्ट में, वो कहेगा मेरे लिए भी वही बात है, हम दोनों दोस्त बातें करते करते सड़क के ऊपर पैरेलल जा रहे हैं, तो मेरी आंखों से मेरे बुलेट वाले दोस्त की आंखें इक्वल डिस्टेंट पर रहती हैं, ग्रीन वाला गैप चेंज नहीं होता। तो हीरो होंडे वाले लड़के के लिए भी बुलेट वाला लड़का रेस्ट पर ही कहा जाए। यानी कि सेम चीज रेस्ट पे भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जर्वर कौन है।
स्टैंडिंग लड़के के लिए जो बाय बाय कर रहा है, ये दोनों लड़के मोशन में हैं, बुलेट वाले और हीरो वाले। लेकिन दोनों बाइक वाले बच्चे लड़के आपस में एक दूसरे के लिए एट रेस्ट है। अब यहाँ पर एक बच्ची मेरे को सवाल करती है पिछले बैच में, सर मान लो ये हीरो होंडे वाला थोड़ा सा तेज कर लेता है या स्लो कर लेता है, तब तो ये ग्रीन कलर आपस में चेंज हो जाएगा ना, ग्रीन गैप, तो तब ये दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट पर होंगे? नो, फिर ये मोशन में आ गए एक दूसरे के लिए, क्योंकि पक्की डेफिनेशन ये है कि वक्त बीतने के साथ साथ अगर चीज जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो चीज जो ऑब्जर्व कर रही है, उन दोनों के बीच का गैप चेंज ना हो, तो ही फिजिक्स के मुताबिक आपने बोला है कोई बॉडी एट रेस्ट है, वरना वो मोशन। अब इतना एग्जाम्पलों से समझाने के बाद अब मेरे बच्चों को आपने लेफ्ट हैंड या राइट हैंड खड़ा करना है जब मैं आपसे पूछूं, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन टर्म्स? शाबाश, रेज योर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। बेटे एक हाथ खड़ा करना सर, जरा इनको मोटिवेट करना, बच्चे मेरी सुनते ही नहीं बात। आइदर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, एक हाथ खड़ा करना ही करना है। अगर समझ आ गया तो राइट हैंड, नहीं समझ आ गया तो लेफ्ट हैंड, बिना शाही। लेट मी चेक, लेट मी चेक। शाबाश डाउन। इसका मतलब है मेरे बच्चों को समझ आ गया। पिछले बैच में, ध्यान से सुना, पिछले बैच में एक बच्चे ने बोला सर क्या मैं अपनी एग्जांपल दूं एक? मैंने कहा बोलो। उसने मेरे से भी बड़ी एग्जांपल दे दी मेरे को समझाने के लिए, आपकी क्लास उम्र के बच्चे ने। मैंने कहा बताओ। कहता सर मान लो ये बस जा रही है। मैंने कहा ठीक है, बस जा रही है। कहता सर इसमें आपको पता अलग अलग चेयर पे पैसेंजर्स बैठे होते हैं और ड्राइवर भी बैठा हुआ है, और ये बस उधर को जा रही है। आई सेड यस। कह रहे सर इस बस में दो दोस्त हैं जो आपस में पढ़ने के लिए जा रहे हैं के एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, और उन दोनों ने अलग अलग चेयर पे सीट ले ली। कहता ठीक है। कहता सर उन दोनों लड़कों में से एक लड़के के मम्मा यहाँ पर खड़े हुए हैं और वो अपने बच्चे को बस में बिठाकर बाय बाय कर रहे हैं, यहाँ पर खड़े हुए बस में। कह रहा ठीक। मैंने कहा बेटे आप बताओ। कहता सर जो मोम के लिए उसका सन है वो चलती हुई बस है, क्या वो मोशन में होएगा ना? मैंने कहा यस, क्योंकि ये गैप चेंज करेगा। द गैप बिटवीन मॉम एंड हर सन बाय द पासेज ऑफ टाइम चेंजेस, तो सन जो है वो मोशन में आएगा। किस ऑब्जर्वर के लिए? मम्मा के लिए। सन इज इन मोशन फॉर मॉम। ओके। अब बच्चा कहता है सर मान लो ये सन अपने मम्मा को देख रहा है, ईश्वर मम्मा ऑब्जर्वर है, बीइंग ऑब्जर्व्ड है, और सन ऑब्जर्वर है, सन ऑब्जर्वर है। मैंने कहा बेटे तुम ये पूछना चाहते हो मॉम क्या है फॉर सन, तो मैं कहूंगा बेटे इस लड़के के लिए भी तो मम्मा धीरे धीरे दूर हट रहे हैं जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही है, तो इसका मतलब गैप बिटवीन द सन एंड मॉम चेंजेस, तो मॉम भी अपने बेटे के लिए मोशन में है, तो मॉम इज इन मोशन फॉर सन एज ऑब्जर्वर। ओके। उस सन का फास्ट फ्रेंड बैठा है साथ में। अब मैं आपसे पूछूं कि उसका फास्ट फ्रेंड भी उसके मम्मा को देख रहा है, तो फास्ट फ्रेंड के लिए उसके दोस्त के मम्मा मोशन में है कि नहीं? तो आप कहोगे सर देखो फास्ट फ्रेंड और उसके दोस्त के मम्मा के बीच में जो व्हाइट कलर का गैप है वो चेंज हो रहा है बाय द पासेज ऑफ टाइम, तो आप बोलोगे मॉम इज इन मोशन, ये भी मोशन में, ये भी मोशन में, ये भी मोशन में। मॉम इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू फास्ट फ्रेंड। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब जो ऑब्जर्वर है। उल्टा बोले फास्ट फ्रेंड इज इन मोशन, फास्ट फ्रेंड के लिए भी मम्मा जो है, फास्ट फ्रेंड के लिए फास्ट फ्रेंड इज इन मोशन, किसके लिए? फास्ट फ्रेंड इज इन मोशन
फॉर मॉम, मम्मा के लिए। लेकिन ये दोनों देखो, अब मान लो अपने दोस्त को ये उसका बेटा देख रहा है, दोनों चेयर पे फिक्स बैठे हुए हैं बस के अंदर। तो बस, हालांकि बस चल रही है, लेकिन इनकी आपस की कुर्सियों की दूरी चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसलिए सन के लिए उसका फास्ट फ्रेंड एट रेस्ट है, और फास्ट फ्रेंड के लिए सन भी एट रेस्ट है, दोनों के दोनों रेस्ट पर है। इसका मतलब कोई चीज मोशन में है या रेस्ट में है, ये डिपेंड करता है कि उसको देखने वाला कौन है। दैट इज व्हाई रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। अब से टीचर पूछता है, आपने या तो बायां हाथ खड़ा करना है बेटे या दायां। राइट हैंड तब खड़ा करना है जब आपको रेस्ट और मोशन क्लियर हो गए। माय क्वेश्चन, प्लीज रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। शाबाश, गिव द इंडिकेशन टू द टीचर। Raise your hand. बेटे प्लीज, इतने एक टीचर इतनी एनर्जी लाता, बच्चों ऐसे सोचते, बच्चे इतना भी नहीं कर सकते बच्चे। आप, आपको फिर मेरी क्लास में बैठने का हक है। मैं कह रहा हूं दोनों हाथों में से एक हाथ खड़ा करना अपनी चॉइस का। लेफ्ट हैंड तब खड़ा करना है जब आपको नहीं समझ आए, राइट तब करना है जब आपको समझ आ। कुछ कुछ क्लासेस के कैमरे पलटे हुए होते हैं, उसमें सारे लेफ्ट दिखते हैं, इसका मतलब है वो राइट ही खड़े होते हैं। ठीक है, तो ये जरा कम्युनिकेशन में होता है। ओके, डाउन, शाबाश। अब हम बढ़ते हैं आगे, ध्यान से सुनना बेटे। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम कुछ चीजों को स्टडी करेंगे। एक का नाम है वेलोसिटी, ये टर्म्स है। एक्स का मतलब होता है पोजीशन, कभी कभी वाई से भी लिख देते हैं पोजीशन। टी का मतलब होता है टाइम, पोजीशन को मीटरों में मापते हैं, टाइम को सेकंड्स में मापते हैं, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में मापते हैं। ये इसकी यूनिट्स हैं। अब इन टर्म्स को समझने के लिए जरा इधर आ जाओ। मैंने ग्राफ पेपर में एक तरफ टाइम ले लिया, एक तरफ पोजीशन ले लिया। गॉट इट? ध्यान से सुना। मैं इस सड़क के ऊपर यहां पर एक माइलस्टोन लगा दिया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है मान, और इस बच्चे को बोला कि तुम भागना शुरू करो। तो इस बच्चे ने भागना शुरू करा। ध्यान से देखना, जैसे ही उसने यहां से भागना शुरू करा, मैंने अपनी घड़ी के ऊपर टाइम को लिख दिया 0 टाइम, 0 सेकंड। ओके, वो बच्चा यहां पर पहुंच गया, तो मैंने देखा उसने 5 मीटर भाग गया वो, और 5 मीटर भाग गया और 1 ही सेकंड लिया, तो टाइम लगा 1 सेकंड, और वो बच्चा भाग गया 5, 1, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। तो ये हो गया बेटे, गॉट इट? तो 5 मीटर को यहां से लिया और 1 मीटर को यहां से लिया, ये पॉइंट आ गया हमारा। ओके, याद रहे, 5 मीटर भाग गया इन 1 सेकंड। फिर मैंने बोला अच्छा बेटे आगे देखते हैं। वो लड़का और तेज हो गया, वो आगे 6 मीटर भाग गया, 6 मीटर, लेकिन इस बार उसने 6 मीटर के लिए 1 सेकंड ही लिया। इसका मतलब 1 सेकंड कवर करने के लिए उसने 5, पहले वाला सेट 5 मीटर भागा। अब अगला 1 सेकंड यहां से शुरू से काउंट करना है, 1 सेकंड ये और 1 सेकंड आगे वाला, 2 सेकंड जब पूरे हो गए टोटल शुरू से, तब वो लड़का 5 और 6, 11, 11 भाग गया। 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो मैंने यहां से ऐसे पॉइंट ड्रा कर लिया। एक और ले लेते हैं बच्चे। मान लो वो लड़का अगले सेकंड में कुछ ज्यादा ही तेज हो गया, वो 8 मीटर भाग गया, और टाइम लग गया अभी भी 1 सेकंड ही लगा। चलो ठीक है, तो टोटल शुरू से कितने सेकंड हो गए? 1 सेकंड, 2 सेकंड, और थर्ड सेकंड हो गया 3। और कितना आगे चला गया? 8 चला गया। शुरू से कितना हो गया? 5 + 6, 11, + 8, 19, 19 बढ़ गया। चलते हैं, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है बेटे, तो आपने देखा मेरे पास 3 पॉइंट आ गए। ये 3 पॉइंटों को अब मैं ज्वाइन करता हूं। तो ये ज्वाइन करा जब मैंने इनको, तो ग्राफ ऐसे आएगा, गुलाई में आएगा थोड़ा सा। तो आपने देखा कि ये वाला जो ग्राफ है, अगर फ्री हैंड से जोड़ेंगे तो ये ग्राफ हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है, मोशन। गॉट इट। अब दूसरी बात सुनो। मान लो इसी लड़के का एक और दोस्त था, वो यहां पर खड़ा था। ठीक है, पहले ही वो 5 मीटर पे खड़ा हुआ था, पहले ही 5 मीटर पे। अब उनके टीचर ने उनको इकट्ठे भागने के लिए बोला था, वो पहले ही 5 मीटर पे खड़ा था। तब देखा कि वो येलो वाला जो बच्चा है वो भाग ही नहीं रहा, टाइम बीत रहा है, हालांकि टीचर ने बोला दोनों भागो। व्हाइट वाला बच्चा 0 मीटर से शुरू करता है अपना मोशन, ऐसे ओरिजिन से करता है। लेकिन येलो वाला बच्चा वक्त के साथ भागता ही नहीं, लेकिन ऑलरेडी वो 5 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। तो येलो वाले बच्चे के लिए जब ग्राफ ड्रा करेंगे, इधर टाइम ले लेंगे, इधर पोजीशन ले लेंगे, तो कोई बच्चा बोलेगा सर जब 0 टाइम था तब भी वो 5 पे खड़ा हुआ था। तो 1 2 3 4 5, तो 5 पे खड़ा हुआ है, ये 0 पे ऊपर आपका ये पॉइंट आ गया। मैंने कहा बेटे जब 2 सेकंड हो गए तो बच्चा बोलेगा सर 2 सेकंड हो गए होंगे तब भी आपका येलो वाला तो खड़ा ही है। आपका 1 सेकंड पे भी उतना ही हो गया हो, 2 सेकंड पे भी वो वहीं पर रहेगा, तो आपका पॉइंट तो यही आ गया। 3 सेकंड पे भी आपका वो येलो वाला भागा ही नहीं, वो तो यहीं पर आ गया। अब इन फर्स्ट सेकंड, थर्ड, 2 सेकंड, 3 सेकंड बीतने के बाद भी ये वाला येलो वाला बच्चा वहीं पर खड़ा हुआ है, तो ये सारे हमारे पास पॉइंट आ गए। अगर इनको मैं जोड़ूं तो ग्राफ क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन। और वो स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आएगी। अगर आपको कभी ऐसा ग्राफ दिया हो तो इसका मतलब है कि उस बच्चे का विद द पासेज ऑफ टाइम पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा। जब चेंज नहीं हो रहा तो ऐसे ग्राफ को बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन ये वाला पोजीशन टाइम ग्राफ किसके लिए बेटे, फॉर ए रेस्टेड बॉडी, फॉर ए रेस्टेड बॉडी। पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसी बॉडी के लिए जो समय के साथ उसी पोजीशन पर खड़ती है, उसका जो ग्राफ आता है, मेरे बच्चे हमेशा याद रखेंगे कि वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा, और वो स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल रहेगी। पैरेलल का मतलब आपस में दूरी हर जगह पर बराबर है। लेकिन अगर कोई चीज मोशन में होएगी तब उसका ग्राफ टाइम एक्सिस के कभी भी पैरेलल नहीं आएगा, तब वो ग्राफ है। ठीक है, एक चीज और ध्यान से सुनो। मान लो यहां पर एक तीसरा बच्चा है जिसने ग्रीन कलर के कपड़े डाले हुए हैं और वो भाग रहा है, ओरिजिन से ही भाग रहा है। ठीक है, जब उस बच्चे को भागने के लिए बोला टाइम पोजीशन 0, ग्रीन कलर वाला बच्चा क्या है, उसका एक अलग ही मूड है। वो भागता तो है, लेकिन वो कहता है सर मैं एक पक्के, मेरा तो एक फार्मूला है, मैं हर 1 सेकंड में 5 मीटर भागूंगा। 1 सेकंड बीतेगा मैं 5 मीटर भागूंगा, मैंने अगले 1 सेकंड में तेज नहीं होना, मैं तो 5 मीटर ही भागूंगा। अगले 1 सेकंड में मैं 5 मीटर ही भागूंगा। मेरा तो मैं तो जॉगिंग कर रहा हूं, मैं कोई रेस नहीं लगा रहा। उसके टीचर कहते ओके, फर्स्ट सेकंड में तुम कितने भागे, कह रहा है सर 5 मीटर, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट आ गया। अगले 1 सेकंड में कितने भागे सर, कहता सर अगले 1 सेकंड में आप ऐड कर लो, 5 + 5 10, 10 हो गए, तो 6 7 8 9 10, ऐसे जोड़ दो इनको, ये वाला पॉइंट आ गया। अगले 1 सेकंड में 15 हो जाएगा, 11 12 13 14 15,
जब ये 3 पॉइंट आ जाए तो इनका ग्राफ जोड़ेंगे ना बेटे, तो वो भी स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है। पर ये स्ट्रेट लाइन टाइम के बीतने के साथ साथ पोजीशन भी बढ़ रही है। ऐसे स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन, लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके, तो ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ तब होता है जब भागता हुआ लड़का ना तो तेज हो ना तो स्लो हो और ना ही भागते भागते अपनी डायरेक्शन चेंज करे। जब इस तरह से ग्राफ आ जाए, पोजीशन टाइम ग्राफ, लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन, तब हम बोलते हैं कि वो मोशन को, उस ग्रीन वाले लड़के का मोशन, मोशन इज विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बच्चा बोलेगा सर सबसे पहले वाला देखते हैं, व्हाइट वाला। तो वो जो व्हाइट वाला लड़का है उसके लिए आपने ये ग्राफ ड्रा करा था, व्हाइट वाले लड़के के लिए, तो वहां भी ग्राफ तो ऊपर को बढ़ रहा था लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं आया था। तो इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी वेरिएबल है, चेंज कर रही है। आंसर इज यस। इस ग्राफ के अंदर भागने वाले लड़के की वेरिएबल मैंने चेंजेबल वेलोसिटी कही जाएगी। इस ग्राफ के अंदर लीनियरली राइजिंग में बच्चे की वेलोसिटी कांस्टेंट कही जाएगी। सर इस ग्राफ में, भाई इस ग्राफ में तो वेलोसिटी है ही जीरो, वो मूव ही नहीं कर रहा। जो चीज मूव ना कर रहे उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। वेलोसिटी का डेफिनेशन ही क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कितने टाइम में कोई बॉडी अपनी कितनी पोजीशन चेंज कर रही। तो मैंने अपने बच्चों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन सिखाया। एक बार फिर से करो, अपने अपनी थॉट प्रोसेस चेक करो। ग्राफ, राइजिंग लाइन आएगा, लीनियरली वर्ड नहीं लिखना यहां पर राइजिंग कर्व्ड लाइन आएगा, राइजिंग कर्व्ड लाइन कब? अगर वेलोसिटी वेरिएबल हो। ग्राफ स्ट्रेट लाइन लीनियरली राइजिंग आएगा अगर कब? अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, ना वो भागते भागते तेज हो ना स्लो। यहां पर जैसे जॉगिंग हो रही है, यहां पर जैसे रेस लग रही है, और यहां पर ये वाला येलो वाला बच्चा जो खड़ा हुआ है, येलो वाला बच्चा, उसके लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा टाइम एक्सिस के पैरेलल। ये किसके लिए? ये वाला ग्राफ ये ग्रीन वाले बच्चे के लिए है जो ना तेज हो रहा है ना स्लो हो रहा है। ये वाला बच्चा ना तेज हो रहा है ना स्लो हो रहा है। येलो वाला बच्चा भागता ही नहीं है, और व्हाइट वाला बच्चा जो है भागते भागते तेज हो रहा है। अगर भागते भागते तेज होएगा तो इस तरह से कर्व्ड लाइन से आएगी। एक बच्चा कहता है सर एक और भी पूछूं आपसे। मैंने कहा पूछो बेटे। अगर लड़का भागे लेकिन वो भागते भागते स्लो पड़े, शुरू में तेज हो, भागते भागते स्लो पड़े, तब उसका ग्राफ कैसे होगा? तब मैं बोलूंगा पोजीशन टाइम ग्राफ उस लड़के का ऐसे आएगा, नीचे को कर्व्ड लाइन ऐसे। अगर कोई बच्चा भागते भागते तेज जाए, तेज वाला ये वाला ग्राफ येलो वाला दोबारा दिखाऊं तो एक्स, येलो वाला ग्राफ दोबारा देखो तो वो ऐसे है। भागते भागते तेज हो, भागते भागते स्लो हो, भागते भागते ना तेज हो ना स्लो हो, भागे ही ना। तो यहां से मेरे बच्चों को क्या चारों ग्राफ समझ आ गए हैं या नहीं आ गए? If you have understood the graphical representation of the motion, please raise your right hand. शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 99% क्रेडिट आपके टीचर्स को जाता है जो इस वक्त ड्यूटी दे रहे हैं, या जो आपके रेगुलर टीचर भी हैं। 99%। देखो कितना अच्छा डिसिप्लिन बनाया, और इतनी बड़ी क्लास में भी समझ आ गया जबकि पढ़ाने वाला इतनी दूर बैठा। All credit goes to my friends which are presently maintaining the so good discipline in the class.
सो बेटे एक बार फिर से बता दूं, ध्यान से सुना। पोजीशन टाइम ग्राफ, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर हो, एट रेस्ट, तब तब बच्चा कहेगा सर फिर वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा टाइम एक्सिस के ऊपर। अगर कोई बच्चा बोले सर पोजीशन टाइम ग्राफ बताओ, अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ना वो तेज जाए ना वो स्लो पड़े, कांस्टेंट हो बॉडी की वेलोसिटी, ना ही भागता हुआ लड़का तेज हो ना स्लो हो, और ना ही वो जब भागते भागते अपनी डायरेक्शन चेंज करे, तो लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन। अगर कोई बच्चा भागते भागते तेज होता है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था एग्जाम्पलें लेके, तब उसका ग्राफ क्या था, नॉट ए स्ट्रेट लाइन बट इन दिस शेप। इसमें बच्चा क्या होएगा, फास्ट होता है भागते भागते। अगर कोई बच्चा भागते भागते स्लो पड़ता है बेटे, तो उसका ग्राफ क्या होएगा, स्लोज डाउन वाला भागते भागते, तो उसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, कर्व्ड आ जाएगा, लेकिन ऐसे है। चारों ग्राफ मैंने पहले अच्छे से डिटेल में आपको बोर्ड पे समझाए, अब उसकी मैंने क्लियर फोटो बताई आपको, सारी थ्योरी हटा दी। शाबाश। लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, लेक्चर वाइंड अप करते हैं आज। जो जो बच्चे ने आज का लेक्चर अच्छे से समझ लिया, तो वो राइट हैंड खड़ा करेंगे। हैव यू अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर? प्लीज रेज योर राइट हैंड। डैफोडिल वाले रेस्पॉन्ड करें बेटे, एक हाथ खड़ा करना ही करना है, मेरे को सुस्त बच्चे चाहिए नहीं, मैंने पहचान कर लेनी अगली बार, मैं बैठने नहीं दूंगा, बिलीव मी। दोनों में से एक हाथ खड़ा करना है। इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज रेज योर राइट हैंड, इफ नॉट प्लीज रेज योर लेफ्ट हैंड। डैफोडिल के मैं बच्चे नोट कर रहा हूँ, लेट मी टेक दी फोटोग्राफ। जो बच्चे हाथ नहीं मैडम हम आपको बैठने नहीं देने इन बच्चों को, सर खड़े कर दिए। हाँ मैंने नहीं देखना बेटे आप बड़े हो गए कि छोटे हो। शाबाश, मेरे को इंडिकेशन मिला कि माय स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ऑल थैंक यू, ऑल थैंक्स टू द टीचर्स मेंटेनिंग सो गुड डिसिप्लिन इन द क्लास। शाबाश बेटे, आपने बहुत अच्छे से सुना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सिट डाउन बेटे। डैफोडिल आपको बेटे मिल गई है, वर्कशीट मिल गई है, दिखाओ ऊपर ऐसे करके दिखाओ, अगर मिल गई है तो शो मी। गुड। रोज आपको बेटे इधर रोज, रोज आपको असाइनमेंट मिल गई है, वर्कशीट मिल गई है रोज, नहीं मिली? चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। मैं बोलती हूँ, ध्यान से सुनना। Which of the following expression are linear polynomial? MCQ है फर्स्ट, linear polynomial। क्या बोला मैंने? linear polynomial। आई थिंक आपको पॉलिनोमियल एंड एक्सप्रेशन का डिफरेंस पता है सबको। व्हाट इज पॉलिनोमियल एंड व्हाट इज एक्सप्रेशन? यस रोज, फर्स्ट बेंच, मिडिल रो। साइज लेफ्ट मोस्ट बॉय, रोज फर्स्ट रो, मिडिल बेंच, लेफ्ट मोस्ट बॉय। you stand you stand up stand up बेटे। थोड़ी आवाज आ रही है। बेटे व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या होता है, या फिर डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड एक्सप्रेशन? क्लास सनफ्लावर बेटे आपको
असाइनमेंट मिल गई है, वर्कशीट सबको? डिड यू गेट ए वर्कशीट? सनफ्लावर, ओके मैंने स्टार्ट किया बेटे पॉलिनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है। देखो ऐसे तो छुट्टियों से पहले भी आपकी एक क्लास लगी है, उसमें भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, अभी मैं दोबारा बता रही हूँ, ध्यान से सुन लो क्या फर्क होता है पॉलिनोमियल एंड एक्सप्रेशन में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेटे, एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता। पहले तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है इसको समझो। हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन है, सपोज मैंने लिख दिया x+2, दिस इज एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर, पावर पता है ना, ये पावर, यहाँ पे जैसे पावर डिग्री, पावर किसी भी वेरिएबल की पावर ना तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए ना ही नेगेटिव होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए पहले इस पे, पावर कैन नॉट बी नेगेटिव and fraction. Power cannot be negative and fraction. क्लियर है? अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो अलजेब्रिक है, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इतनी बात क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट? ओके अब सपोज मैं आपके लिए वो लिख रही हूँ, मेरे पास एक्सप्रेशन है, मैंने लिखा x⁻⁴, चलो √(x+5), तो बताओ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं? क्लास सनफ्लावर, फर्स्ट मिडिल रो गर्ल्स, लेफ्ट मोस्ट गर्ल, स्टैंड अप बेटे, यस यस स्टैंड अप, हाँ जी यस बताओ क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बस यस और नो, आपने इतना बताना है। आवाज नहीं आई बेटे मुझे तो, सर आवाज नहीं आ रही है, स्टूडेंट ने क्या बोला, यस और नो? नो, यस राइट, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है बेटे, क्यों नहीं है बताओ? आवाज कम, माइक के पास आके बोलो, आगे आ जाओ माइक के पास। यही से बोल दो, थोड़ा लाउडली बोलो। बताओ चलो ठीक है, इसकी पावर हमारे पास क्या है, हाफ है, दैट इज फ्रैक्शन। अगर पावर फ्रैक्शन है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होता। क्लियर है? इसको आप पॉलिनोमियल कह सकते हो, ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में पावर नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, सिंपल जो 1 2 3 होल नंबर होते हैं वो भी हो सकती है। क्लियर है? लेकिन एक्सप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ये एक कंडीशन आ जाती है, इसको लिख लो कि ये आपके पास कंडीशन रहेगी जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे कि अगर हमें पावर नेगेटिव जब फ्रैक्शन मिली, दैट इज नॉट अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अदरवाइज दैट विच इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। राइट डाउन बेटे, जल्दी जल्दी लिखो ये।
हो गया, डन है ये, लिख लिया सबने? रेज योर हैंड अगर लिख लिया तो गुड। ठीक है, अब आपको आई थिंक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर है, क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम नेक्स्ट करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात। एवरी एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। हमने कहा कि ये मेरे पास क्या, एक मिनट मैं नेक्स्ट पेज करती हूँ बेटे। नेक्स्ट है हमारे पास, हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 हो, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। जैसे मैंने लिखा x+5, 3x+9, ठीक है। इसमें डिग्री क्या है आपके पास? वेरिएबल की डिग्री, वेरिएबल की पावर 1। तो ये क्या है हमारे पास? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 है, दैट पॉलिनोमियल इज अ लीनियर। तो हम लीनियर में क्या चेक करते हैं? डिग्री इज 1। हमारे पास डिग्री 1 होनी चाहिए। क्लियर है बेटे सबको ये चीज? फर्स्ट एमसीक्यू करते हैं, अगर ये क्लियर है तो। फर्स्ट एमसीक्यू देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर लीनियर पॉलिनोमियल। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है आपके पास? फर्स्ट ए ऑप्शन है 1+x, ऑप्शन बी π²+2x, ऑप्शन सी √2 plus a²x, ऑप्शन डी -3x², ऑप्शन ई x+1 whole square -x²। Which of the following is linear polynomial? Yes, कौन बताएगा? हैंड रेज करो, किसको पता है आंसर? ठीक है बताओ। रोज फर्स्ट बॉय इस तरफ। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर पॉलिनोमियल? फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। सेकंड ऑप्शन, और बेटे ऑप्शन थर्ड देखो, इसमें डिग्री क्या है आपके पास? 1। तो ये लीनियर है? यस, दिस इज ऑल्सो लीनियर। इसकी डिग्री क्या है बेटे? 1 2। तो ये लीनियर नहीं है, दैट इज नॉट अ लीनियर। क्लियर है? ये ऑप्शन देखो, बताओ ये लीनियर है या नहीं? 1 नो। ओके, इसको सॉल्व करते हैं पहले। x+1 होल स्क्वायर, हमारे पास क्या आ गया? x²+2x+1। मैंने क्या लगाया? इसका फॉर्मूला लगाया a+b होल स्क्वायर का। ये तो सभी को आता है ना, a²+2ab+b²। तो ये मेरे पास फॉर्मूला है। उसके बाद माइनस ये टर्म -x², ये तो एज इट ही लिख दी, इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं है। अब आप बताओ मुझे, क्या ये x² और ये x² कैंसिल आउट हो सकते हैं? हो सकते हैं? यस। तो हम इसको काट देते हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो गए। आंसर क्या है हमारे पास? आंसर आ गया 2x+1। ये हमारे पास अब आंसर आ गया। इसकी डिग्री क्या है? 2
2x+1 जो हमारे पास आंसर आया है, इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री हमारे पास 1 है, तो दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल। ऑप्शन ई इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसमें हमारे पास एक ही नॉट वाला ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन डी। बाकी जो ऑप्शन है वो सारे लीनियर है। क्लियर है बेटे? इसमें कुछ पूछना है, कोई डाउट? नो। ओके, लिख लिया सबने? आपको सबको अब तो सबको असाइनमेंट मिल गई है, वर्कशीट सबके पास है? चलो सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज कर दूं बेटे मैं? डैफोडिल नेक्स्ट पेज कर दूं? बोलो बेटे, नेक्स्ट पेज कर दूं डैफोडिल? क्वेश्चन नंबर 2, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है बेटे आपके पास? 5x² माइनस 6x³ प्लस 4y² माइनस 8। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डैफोडिल मिडल टर्म, लेफ्ट मोस्ट बॉय, मिडल रो, फर्स्ट बेंच। खड़े हो जाओ बेटे, स्टैंड अप। डिग्री बताओ इसकी। 3। ओके, 3 तो यहाँ पे आपको दिख रहा है x⁻3। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। पता है सबको? यही होती है ना डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, सिट डाउन। अब इसमें देखो, जो आपने 3 बताया है उस टर्म में देखो, ये जो टर्म है इसमें 2 वेरिएबल है, एक x है और दूसरा y है। दोनों की कुछ ना कुछ पावर पड़ी हुई है। x की पावर 3 है, y की पावर क्या है? 1। क्लियर? जब हम डिग्री बोलते हैं तब जो भी वेरिएबल्स होते हैं एक टर्म में, उन सबकी पावर ऐड कर दो पहले तो यहाँ पे अगर मैंने पावर ऐड की तो मेरे पास क्या आ गया? 4। तो इसकी हाईएस्ट, इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी आई हमें? 4 मिलती है बेटे। हाईएस्ट पावर 4 है। जितने भी वेरिएबल हो किसी टर्म में, सबकी पावर ऐड करते हैं। इस टर्म में सिंगल वेरिएबल है x, उसकी पावर क्या है? 2। तो मैं सिर्फ पावर लिख रही हूँ 2। इसमें पावर आ गई हमारे पास, हाईएस्ट पावर 4 आ गई इस टर्म की। इस टर्म की पावर 2 आई और इस टर्म की तो पावर वेरिएबल ही नहीं है, तो पावर 0। क्लियर? तो हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है? इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है? 4। हाईएस्ट पावर क्या है? 4। तो डिग्री क्या हुई? ऑप्शन इज बी। ऑप्शन इज बी। डिग्री हमारे पास क्या है? 4। ऑप्शन इज बी। क्लियर है? क्लियर है बेटे सबको? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ p ऑफ अ -√2। फटाफट सॉल्व करो, मैं आपसे ही आंसर पूछूंगी, इसको सॉल्व करो। सबके पास असाइनमेंट है ना? जल्दी से सॉल्व करो इसको।
रोज लास्ट में जो लड़के बैठे कॉर्नर पे, बिल्कुल लास्ट में, आप बताओ बेटे इसका आंसर। खड़े हो जाओ, शाबाश, है ना? हाँ जी, हाँ जी, कॉर्नर पे बैठे हो जो, आप बताओ आंसर, बताओ, सॉल्व कर लिया होगा ना? सॉल्व किया कि नहीं ये बताओ मुझे। वैल्यू फिल की कि नहीं एक्स की जगह पे? करो, अभी करो फिल, उसको वैल्यू फिल करो बैठ के, सिट डाउन। लोटस फर्स्ट बेंच, जो फर्स्ट इधर साइड पहला बॉय बैठा है, लड़का नहीं, वो कॉर्नर वाला नहीं, स्टार्टिंग इधर, हाँ जी, जो इधर देख रहे थे, आप खड़े हो जाओ, आंसर बताओ इसका। ऑप्शन डी, बी बी बी, ओके। और सबका बाकियों का क्या आया? इधर ये फर्स्ट शो सेकंड रो में जो लड़की क्या आया आंसर? देखो वैल्यू फिल करनी है, एक्स की वैल्यू दी है आपको -√2, तो एक्स की जगह पे हमने उसकी वैल्यू फिल की -√2, ये 2√2 एज इट, ये आ गया -√2 स्क्वायर, -8 एज इट, और ये आ गया -√2 रेज़ टू पावर 3। सॉल्व कर दें इसको, 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, √2 इंटू √2 क्या होता है आपके पास? 2 +2, यहाँ पे ये +2, ये माइनस, तो साइन क्या आ गया हमारे पास? प्लस माइनस माइनस, √2 इंटू √2 स्क्वायर, ये आ गया √2 और ये आ गया 2, 10। ये स्क्वायर था बेटे, स्क्वायर था तो नेगेटिव नहीं रहा, पॉजिटिव हो गया आपके पास। 2√2 एज इट, और -√2 स्क्वायर इज 2, -8 माइनस क्यूब इज -√2 क्यूब, मीन्स आपने क्या करना है, √2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, √2 इंटू √2 इंटू √2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2√2। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? नेक्स्ट देखो क्या आया, 2 + 1 इज 3, 2 इंटू 2 4√2, माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 2 16 इंटू √2। कितना सबका हो गया? हो गया बेटे सबका ये? अब आंसर देखो, मिल गया आपको आंसर। 3 एज इट, √2 टर्म्स ऐड कर दो, दोनों के साइन सेम है, 16 + 4 इज 20, तो ये आ गया +20 √2। अब बताओ आंसर, अब बताओ ऑप्शन क्या आया? ऑप्शन इज डी, नॉट अ बी, ऑप्शन इज डी। क्लियर है बेटे? क्लियर है बेटे, इसमें कोई डाउट? डैफोडिल सेकंड रो, खड़े हो बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 फॉर बॉय, इधर बैठा है जो, यस, जिसने अभी नीचे किया है सेकंड रो
ऑर्बिटल रो में सेकंड बेंच। हाँ जी इसी के साथ तेरे जिसको तूने बोला ना उसी पे बोल रही हूँ। खड़े हो जाओ सवाल। क्वेश्चन नंबर 4। नहीं बेटे आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ डेफोडिल पीछे वाला बेंच। नहीं उसको नहीं बोला मैंने, इधर जो लंबा है दोनों में। नहीं आप बैठो आप बैठो आप बैठो, साथ वाला में खड़े हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया फटाफट। आप करके दिखाओगे क्वेश्चन नंबर 4। बोलने के लिए नहीं बोला मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 करो बेटे, सॉल्व करो कॉपी पे। Px is equal to x plus 3। हाँ जी क्या आया आंसर? पहले की डालनी है P of x plus P of minus 2x। और बेटे सॉल्व हो गया। इधर गर्ल्स बेटे रोज क्या हो गया बेटे क्लास में? आपका सॉल्व हो गया गर्ल्स? बेटे P of x एज इट आपके पास पड़ा है, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया। dx की वैल्यू तो आपके पास एज इट ही पड़ी है, तो ये तो एज इट ही आ गई। अब ये प्लस यहाँ पे आ गया। हमें क्या दिया? P of -2x। x की जगह अब क्या लिखना है आपने? -2x। तो क्या चीज रिप्लेस हुई है आपके पास? आपके पास ये x की वैल्यू चेंज। x की जगह आप क्या लिखोगे? -2x। क्लियर है? प्लस 3 एज इट। अब तो हो जाएगा आई थिंक सॉल्व। बताओ खड़े हो जो, बताओ बेटे क्या आया आंसर? आप बताओ। आपसे ही पूछ रही हूँ बेटे मैं। अब तो सॉल्व करो। x -2x क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी बता रहे हो आप? चलो ये बताओ 3 + 3 कितना होता है? 3 + 3 कितना होता है बेटे? +6 x -2x -x। अब देखो ऑप्शन क्या है? -x + 6। अब बताओ ऑप्शन। डी। ऑप्शन इज डी। अब अगर बात करोगे तो पूरी क्लास खड़े रहोगे। Sit down। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन इज डी। एनी डाउट बेटे इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर बाइनोमियल? बाइनोमियल से क्या समझते हो? बाइनोमियल से क्या समझते हो बेटे? हाँ जी सनफ्लावर। जो बेटे लास्ट में गर्ल्स बैठी है इधर कॉर्नर पे, सनफ्लावर। हाँ जी बेटे बाइनोमियल क्या होता है?
आगे आगे बता दो मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही। बाइनोमियल उसको बोलते हैं जिसमें हमारे पास पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हो, इस पॉलिनोमियल में सिर्फ 2 टर्म्स हो, उसको बाइनोमियल बोलते हैं, ना 2 से ज्यादा और ना 2 से कम। ठीक है, गो टू योर सीट बेटे, थैंक यू। बाइनोमियल 2 टर्म्स, क्लियर है? तो ऑप्शन क्या है आपके पास? ऑप्शन 5 में फर्स्ट ऑप्शन x raised to power 10 plus pi, क्या ये बाइनोमियल है? इज इट बाइनोमियल? यस और नो ही बोलना है। इज इट बाइनोमियल? यस, दिस इज अ बाइनोमियल। B, x raised to power 100 plus √2 plus √3, कितनी टर्म्स है हमारे पास यहाँ पे? 3 टर्म्स है बेटे, तो दिस इज नॉट अ बाइनोमियल। 3 टर्म्स हैं, 1 2 3 टर्म्स हैं, और बाइनोमियल में 2 टर्म चाहिए हमें, तो दैट इज नॉट अ बाइनोमियल। सी ऑप्शन, y² प्लस y माइनस √2y, इसमें कितनी टर्म्स हैं? इसमें फिर से 3 टर्म्स हैं, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ बाइनोमियल। क्लियर है? डी ऑप्शन देखते हैं, लास्ट ऑप्शन, z raised to power 4 minus 1, कितनी टर्म्स है बेटे? 2 टर्म्स, तो दिस इज अ बाइनोमियल। क्लियर है बेटे? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, 2 करेक्ट ऑप्शंस हैं आपके पास, ए एंड डी। क्लियर है सबको? कोई डाउट बेटे इसमें? एडजॉर्शन रीजनिंग कर लें। यस, नेक्स्ट करते हैं एडजॉर्शन रीजनिंग। एडजॉर्शन, फर्स्ट एडजॉर्शन है, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल px is equal to 0 is called जीरो पॉलिनोमियल। बेटे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है? अगर मेरे पास एक px है, इसको मैं सब कांस्टेंट k के इक्वल लिखना, कोई भी वेरिएबल नहीं होता, ये वैल्यू होती है, जैसे 1 2 3 5 6 फ्रैक्शन, कुछ भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है k, तो दैट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वेरिएबल नहीं होना चाहिए, px जो है वो इक्वल टू वेरिएबल नहीं होना चाहिए, वेरिएबल के बिना जो टर्म कुछ और दिखती है, नंबर में दिखती है, तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है। एग्जांपल अगर हम लिखें, मैंने कहा px इज इक्वल टू -3, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है? -3। अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूं तो ये -3 है, अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं वो भी -3 है, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसमें कोई भी वेरिएबल ना हो। वेरिएबल क्या होता है? जो आप ये p देखते हो ना बेटे, ये p, इसके साथ ये एक टर्म लिखी होती है, ये एक अल्फाबेट लिखा होता है, दैट इज अ वेरिएबल। ठीक है, ये x नहीं होना चाहिए इस तरफ, अगर x नहीं है तो वो कांस्टेंट है। क्लियर है कांस्टेंट क्या होता है? अगर इस तरफ आपके पास राइट मोस्ट साइड पे x नहीं है तो वो कांस्टेंट होता है। क्लियर है? दैट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल px हमारे पास क्या है? एक जीरो है। अब कोई पॉलिनोमियल है वो इक्वल टू 0 है, तो वो जीरो पॉलिनोमियल होगी, क्योंकि उसमें कोई कांस्टेंट टर्म भी 0 होगी, उसकी कांस्टेंट टर्म भी 0 होगी, जो कि हमने k लिया था, तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, जब कांस्टेंट टर्म भी 0 हो जाए तब हम कहते हैं दैट इज द जीरो ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो एडजशन हमारा ट्रू है, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल
px इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को जीरो बोलते हैं जिसकी सारी टर्म्स जीरो हो। हम कैसे लिख सकते हैं जीरो पॉलिनोमियल को? और हम अगर लिख दें ना px इज इक्वल टू 0x प्लस 0, आंसर क्या आया? 0। दैट इज जीरो पॉलिनोमियल जिसमें सारी टर्म्स जीरो हो, वो जीरो पॉलिनोमियल। क्लियर है? जीरो पॉलिनोमियल क्लियर है? ठीक है। ऑल टर्म आर जीरो, जिसमें सारी टर्म जीरो हो, वो जीरो पॉलिनोमियल होता है। क्लियर है ना बेटे जीरो पॉलिनोमियल? अब तो गुड। तो असर्शन बेटे आपका ट्रू है। नेक्स्ट, रूट x प्लस 3 इज अ पॉलिनोमियल, ये फॉल्स है। रूट x प्लस 3 क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी जो पावर है वो फ्रैक्शन है। पावर फ्रैक्शन है, दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पावर क्या है हमारे पास? फ्रैक्शन। तो पावर अगर फ्रैक्शन हो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। हमारा असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन इज सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्लियर है बेटे? कुछ पूछना है इसमें? नेक्स्ट करें, कर दो नेक्स्ट। Second, the degree of a zero polynomial is not defined. Yes, polynomial है आपके पास जीरो, ये एक जीरो पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कैसे डिफाइन करोगे? डिग्री क्या होता है? x की पावर होती है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, जीरो इंटू एक्स, तब इसकी डिग्री क्या है? आप कहोगे 1 है। आंसर तो जीरो आ रहा है ना, जीरो इंटू एक्स करोगे तो आंसर आपका जीरो है, ये इसके इक्वल है, बट इसमें डिग्री 1 है। अब अगर मैं कहूं मेरे पास पी एक्स है 0x के, इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 2 हो सकती है, बट आंसर तो वही जीरो है। तो अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल है, हम उसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। उसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, हम डिफाइन नहीं कर सकते। अगर मैं इसको लिख दूं 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 100, आंसर तो बेटे इसका भी जीरो ही है, पर इसके हिसाब से तो इसकी डिग्री 100 है, वो नहीं है ना। हम कैसे डिफाइन करें? इसकी डिग्री 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है। तो जो जीरो पॉलिनोमियल होती है जिसमें कांस्टेंट टर्म भी जीरो होती है, उसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते। डिफाइन मीन्स हम नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट डिग्री क्या है। जिस चीज को आप एग्जैक्ट वैल्यू बता दो ना कि ये मेरे पास 1 है, ठीक है, ये मेरे पास 2 है, वो भी ठीक है। अब मुझे पता ही नहीं है कि 1 है या 2 है, तो मैं क्या डिफाइन करूं? मैं नहीं कर सकती। क्लियर है ना बात? कि अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते मींस नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हम कहेंगे डिग्री नॉट इसका रीजन भी देख लो। ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज कोफिशिएंट। ठीक है, हर टर्म का कोफिशिएंट तो होगा ही। अगर मैं ये टर्म ले लूं, इसका कोफिशिएंट 0 है। ठीक है, एवरी टर्म हैज अ कोफिशिएंट, तो ये ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। यहाँ पे रीजन भी ट्रू है।
बट ये डिग्री को डिफाइन नहीं करता रीजन। तो ऑप्शन इज बी, A and R are true, but R is not a correct explanation of a A. क्लियर है? ऑप्शन इज बी। थर्ड एंड फोर्थ का ऑप्शन बी लिख लो। थर्ड का ऑप्शन बी है, जो थर्ड है उसका ऑप्शन बी है, फोर्थ का ऑप्शन डी है। ये आपने खुद ट्राई करने हैं। जो असाइनमेंट रह गई है, पॉलिनोमियल आपका हो गया है क्लास में, तो बाकी की असाइनमेंट आप खुद ट्राई करोगे बेटे, ठीक है? ओके बेटे।